everyone, a very pertinent question जो हम सबके दिमाग में आता है when we are preparing for the MBA entrance examinations is which are the colleges that we should apply for and what are the colleges that we are aiming for और उसके साथ साथ हमको कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है because when we say MBA everyone just thinks CAT or IIM but उसके अलावा भी there's a lot more. Of course IIMs are synonymous with the top B schools of our country and most of the students जैसे हम लोग जब हम क्लासेस लेते हैं तब हम देखते हैं चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शंस में जब स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते हैं उनका मेन गोल यही है और मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग बैंगलोर आएंगे ना जब हम IIM बैंगलोर में जाएंगे तब आपसे ज़रूर मिलेंगे तो दैट्स ग्रेट एंड मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक मैम हमको ब्लैकी में ही एंटर करना है एंड ऑफ कोर्स दीज ड्रीम्स दीज होप्स दीज एस्पिरेशंस आर ग्रेट but I would also want to say that there are various extremely exceptionally good B schools in our country apart from the IIMs. But one question that every student asks, especially after their CAT score or while they are preparing and while they are planning to apply, are non-IIMs really worth it? Well, the short answer to this is yes, non-IIMs are worth it. And today I'm going to show you just that, okay? So let's get started, guys. जब हम top B school की बात करते हैं, तो mainly what should be our selection criteria? Of course, उनका selection criteria आपके लिए तो ज़रूर होता है, but you should also have a selection criteria, right? For top B schools, like which B school should you enter? Which B school should you aim for and apply? So what are the factors that a student generally considers? Ranking. Okay, of course, the brand value of the college, the ranking, NIRF की rankings ले लो, global MBA की rankings ले ले, तो what is the ranking of the college and how exactly it is placed vis-a-vis the other colleges in the country? What are the courses on offer? Now this is very important and I would say that जब आप MBA करना चाहते हो it's very important कि आप एक clear mind में रखो कि exactly आपको MBA करना किस में है. See, you can always go for the general MBA program also. That's great. But a lot of times I see that students have already identified their calling. They have already identified their passion. जैसे उनको marketing में ही करना होता है, तो they generally aim for colleges like MICA. या उनको HRM में करना होता है, so then they try for probably a symbiosis or a TES. या XLRI. So अगर आपका एक mindset एस्टैब्लिश्ड है या आपको पता है कि आपको इसी फील्ड में आगे जाकर कुछ करना है, जैसे अगर आपको टेलीकॉम में MBA करना है देन यू वुड प्रोबेबली प्रेफर एन IIT दिल्ली, तो तभी दैट रियली हेल्प्स एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो कोर्सेज, व्हाट आर द कोर्सेज ऑन ऑफर, क्या स्पेशलाइजेशंस ऑफर पे है, उन स्पेशलाइजेशंस के और उन कोर्सेज के कट ऑफ्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ उनका प्लेसमेंट्स क्या होता है. सो प्लेसमेंट्स इज अनदर थिंग. ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हम सब the end reward, of course, education, satisfaction, हमारा life की quality and all of that is there, but ultimate goal is of course your placements, right? What kind of packages that are on offer. So average placements, highest placements क्या होते हैं, फीस क्या होता है, एंड इन दोनों का कंपैरिजन में ROI क्या होता है, व्हाट इज योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. एंड आई वुड से द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली FMS. अगर हम FMS दिल्ली की बात करें तो पर सेमेस्टर की फीस इज ओनली जस्ट अराउंड 57-58,000 रुपीज़. एंड करंट डेटा आप चेक कर सकते हो, बट इट इज़ अकॉर्डिंग उतना ही उसी बॉल पार्क में आता है. And the placements are in more than lakhs of rupees, जैसे 30-35 lakh rupees, और उससे highest placements तो काफ़ी और ऊंचा जाता है. So it is the most amazing college in terms of return on investment. तो फीस भी consideration में लेते हैं students and of course placements consideration में लेते हैं. Exposure, the kind of companies they expose you to during your internship periods, during your summer placements and during your final placements, और co-curriculars में क्या exposure मिलता है आपको, at the same time क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है. और बेसिकली MBA इज़ अ प्लेटफॉर्म, इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग से आपको नोटेबल एलुमनाई बेस भी देखना है, कौन से कॉलेजेस से कैसे लोग पास आउट हो चुके हैं, बिकॉज एलुमनाई जो नेटवर्क होता है दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट इन योर करियर अहेड. सो ये भी स्टूडेंट्स को कंसिडर करना पड़ता है. ऑफ कोर्स द फैकल्टी मेंबर्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द कैंपस,
the intake, the facilities which are available for you, the city, that also matters a lot for a lot of students. And of course eligibility, कौन से exams आप दे सकते हो, and also there you can play to your strength. For example, someone who is not really good at quants, मतलब बनता ही नहीं है आपसे, but you're really good at verbal, then probably a GMAT examination would be a good fit for you rather than a CAT examination. And then you can probably select those colleges India में ही अगर आपको MBA करना है which do accept the GMAT scores. और या आप ऐसे एग्जाम्स ले सकते हो जिनका सिलेबस थोड़ा सा ईजियर है, जैसे CMAT एग्जामिनेशन थोड़ा सा ईजी है, महाराष्ट्र CET, यू कैन प्रॉबली एम फॉर अ JBIMS. एंड यू ऑल्सो हैव अ नोटेबल एलुमनाई बेस, जैसे यू हैव चंदा कोचर who is an alumni of JBIMS. So you have to consider and take into account all of these factors. So I'm going to display, I've definitely spoken to you about all of this, but numbers matter, figures matter, official records matter. So I'm just going to show you NIRF की जो ranking है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so this is the National Institutional Ranking Framework, जो हमारे कंट्री में दिस रैंकिंग इज कंसिडर्ड टू बी द गो टू रैंकिंग जब हम MBA कॉलेजेस की बात करते हैं. और अगर आप डेफिनेटली डू गो थ्रू दिस गिव्स यू द टॉप 100 कॉलेजेस. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक श्योर दैट इट्स क्लियरली विजिबल टू यू. ओके, सो आप ये लिस्ट देख सकते हो इफ इट्स नॉट या, तो आप ये लिस्ट देख सकते हो. दिस इज NIRF की रैंकिंग है विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रेटिंग फ्रेमवर्क. ये इजीली आपको मिल जाएगा, जस्ट गूगल NIRF रेटिंग्स. और इसमें आप देख सकते हो कि जो टॉप कॉलेजेस है, ऑफ कोर्स दे आर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, कोईकोड. बट उसके बाद भी यू हैव कॉलेजेस लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको MBA करना है स्पेशली इन टेलीकम्युनिकेशन, तो IIT दिल्ली इज डेफिनेटली द गो टू कॉलेज. और उसके साथ साथ आप कैट स्कोर्स भी इनके जरूर चेक करना. फॉर एग्जांपल कैट के कट ऑफ्स क्या होते हैं. सो IIT दिल्ली का कट ऑफ यूजुअली होता है अराउंड 97-98 परसेंटाइल कैट का. तो ये रैंकिंग आई वुड डेफिनेटली, आप इस लिस्ट को ज़रूर गूगल करना एंड मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट. और उसके साथ साथ ये डिटेल्स भी आपको देता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन कॉलेजेस की एवरेज प्लेसमेंट्स क्या थी, व्हाट वे देयर इनटेक्स. आपको स्टूडेंट प्रोफाइल भी पता चलता है, जैसे मेल वर्सेस फीमेल एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फ्रेशर्स, तो वो आपको ज़रूर मिलता है. देन ऑफ कोर्स यू हैव, जैसे आप देख सकते हो रैंकिंग में यू हैव XLRI, राइट. एंड XLRI जमशेदपुर की रैंकिंग अगर आप देखो तो इट इज़ 9. सो XLRI जमशेदपुर है यहाँ पे. सो XLRI जमशेदपुर इज डेफिनेटली द गो टू कॉलेज जिनको HRM में स्पेशली, सो 3 प्रोग्राम्स होते हैं ऑन ऑफर. यू हैव द GM, यू हैव द BM एंड यू हैव द HRM प्रोग्राम. एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ZAT के लिए. तो ZAT के स्कोर्स कंसिडर होते हैं एंड यू हैव डिफरेंट कट ऑफ्स फॉर मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स. तो अगर आप ये रैंकिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सिटीज़ में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, और उसके साथ साथ उनके प्लेसमेंट्स क्या है, उनका इनटेक क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अब कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. क्योंकि जैसे अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें, ओके, सिम्बायोसिस एंड स्पेशली एवरीवनस गोल इज SIBM पुणे. सो सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें, अगेन एन एक्सेप्शनली गुड कॉलेज फॉर HR. अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें तो देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द स्नैप एग्जामिनेशन, और उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है. सो वॉट आई वॉन्टेड टू से इज डेफिनेटली नॉन IIMs आर वर्थ इट. एंड कुछ नोटेबल कॉलेजेस, ओके, जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑफकोर्स यू हैव द XLRI, ओके, XLRI जमशेदपुर. देन यू हैव सिम्बायोसिस, ओके. इनके अलग अलग कैंपसेस भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव SIBM बैंगलोर, यू हैव SIBM हैदराबाद, यू हैव SIBM पुणे. तो इसके लिए अगर आप एम कर रहे हो देन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्नैप एग्जामिनेशंस, एंड उसके स्नैप के कट ऑफ्स भी काफ़ी हाई जाते हैं, बट इट्स एन ईजी एग्जामिनेशन. देन यू हैव IIMT गाजियाबाद, ओके. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु वांट टू take up a career in marketing go for IIMT Ghaziabad. and इसका जो alumni base है वो, so yes, you have IIMT Ghaziabad. then MDI Gurgaon, okay. MICA, how can you forget the MICA is also called as the Mecca of marketing. इसका जो communications और marketing का program होता है that is very famous and it's very sought after.
एंड माइका एक्सेप्ट्स योर कैट स्कोर्स इज वेल, एंड उनका एक अलग एग्जाम भी होता है विच इज कॉल्ड एज द माई कैट. एंड इसके सेक्शंस काफ़ी यूनिक होते हैं माई कैट के. लाइक यू हैव अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, देन यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट. और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में यू आर क्वेश्चन ऑन वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव क्यूए एंड डीआई, एंड योर क्वेश्चन ऑन समथिंग यूनिक सेक्शन भी होता है विच इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस. येस, अ लॉट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप XLR एग्जैक्ट में अगर देखो, आप माई कैट में अगर देखो, तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है. Then you have IIFT Delhi. Okay, see when I'm saying GK, I don't just mean GK as a section. I also mean GK आपको essay writing, descriptive writing, personal interviews में भी काफ़ी help करेगा. Then you have IIFT Delhi, जिसका international business program is the most sought after program, IIFT Delhi का. And IIFT also accepts the CAT score, but it also has its own examination which is called as IIFT. एंड उसके लिए आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है. जैसे अगर मैं VRC की बात करूँ तो IIFT की VRC काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी कैट से भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वोकैबुलरी. तो उस हिसाब से आपको अपनी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी पड़ती है. सो यू हैव IIFT दिल्ली. देन FMS की तो मैंने आपको बात कर ही दी है. देन JBIMS, ओके, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ because of the Maharashtra CET examination which is coming up in the month of April. बहुत easy सा examination है, बहुत simple सा examination है, but you get a college like JBIMS. Okay, and in सब colleges की average अगर average अगर हम package देखें, so it goes up to 30 lakhs, 35 lakh rupees, and their return on investment is also great. So generally अगर हम देखें, so these then you have Pumba and you have a lot of these non-IIM colleges which are worth it, and most of these non-IIMs are also better than new generation IIMs, या हम baby IIMs बोलते हैं, क्योंकि they have a lot of आप बोल सकते हैं कि इनकी accreditations काफ़ी अच्छी है, not just in India but also global ranking is very good, especially if you look at FMS, IIFT, XLRI, इनकी MDI, IMT गाजियाबाद, इनकी global rankings बहुत अच्छी है. In addition to that, इनका exposure बहुत अच्छा है, especially if you look at MICA for marketing, exposure बहुत अच्छा है. Then you have colleges like SP Jain. So basically there's a college for everyone and for every course. And so I would, the top 100 entries मैंने आपको दिखाई थी. So वो entries, I would definitely encourage you to go through the NIRF rankings and you would get a clearer idea. बट वाई डू आई वॉन्ट यू टू गेट अ क्लियरर आइडिया? एक तो सिर्फ IIM ये परसेप्शन आप अपने दिमाग से हटाओ, और आपके आसपास भी अगर कोई बोल रहा है कि आपको नहीं सिर्फ IIM में ही जाना है, तो उनको बोलो नहीं, ये देखो ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं, इनके प्लेसमेंट्स देखो, इनका एलुमनाई बेस देखो, इनका एक्सपोजर देखो, इनके कोर्सेज देखो. And at the same time, yes, better, most of these colleges are better than the baby IIMs because इनको काफ़ी years हो गए हैं establish हुए हुए, and they have a much better alumni base and infrastructure as well. And also you have to consider this in terms of eligibility कि आप कौन से exams लिखोगे अब. Okay, for example, अगर हम ICFI देखें, या और ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से कैंपसेस जाना है, तो आप लिस्ट बनाओ कि ठीक है ये कॉलेजेस मेरे रेडार पे है और ये एग्जाम्स में लिखूंगा या लिखूंगी. सो आई एम गोइंग टू लेट्स से राइट द कैट एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू राइट द ZAT एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू राइट द IIFT एग्जामिनेशन, बट also know this your strengths कि क्या when you're investing in the exam fees, will you be able to clear those examinations or not, or will you be able to get a good score? आप देखो क्वांट में, वर्बल में आप अपने आप को कंपेयर करो, एंड डेफिनेटली इफ यू वांट गाइडेंस वी आर देयर. But yes, non-IIMs are worth it, and they are so worth it, and do consider the list and do go through the ratings. So I hope this video has helped you, and हम आपके mentors हैं. You can anytime reach out to any of us. Join our Telegram channel, and the link is in the description below. और आपके जो भी questions है, we are always ready to answer it. Also use the comment section of the video guys to post your doubts and comments, and I will get back to you. हमारा कैट का जो है रेजोल्यूशन बैच शुरू है, बट इस बैच में वी डोंट जस्ट प्रिपेयर यू फॉर द कैट, इट्स एज कैट एंड ओमेट्स. सो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी होती है, एंड इसीलिए जब हम बोलते हैं कि आप MBA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वे बेसिकली लुकिंग फॉर 18 month और ड्यूरेशन. तो 12 महीने ऑलमोस्ट निकल जाते हैं कैट के, प्लस 6 months गोज फॉर दी ओमेट्स.
But yes, it's very important that you join a full-fledged batch for your comprehensive preparation. CAT is your feature भी है if you get into these colleges and other listed B schools जो mentioned है in terms of in terms and conditions, so you can get up to 100% of your course fee back. So yes. Okay, I hope this video has helped you guys. Please make sure to like and share and do subscribe to our channel. Thank you everyone. See you in our live classes soon.